हिताहितं सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितं मानम च तच त्रयोक्तम Ayurveda च uchyate. Means Ayurveda is the Veda that provides the knowledge of good, bad, happy and unhappy life. It promotes and non-promoters measurement and nature. With these lines, I would like to welcome Honorable Principal KSOP, Dr. Professor K. Nagarajan sir, Dr. Satish sir, Dr. Naveen Upadhyay sir, faculty members and participants. Today we are gathered here to celebrate the Ayurveda at the rate 2047. It is a campaign of government Har Din Har Ghar Ayurved. To celebrate this day, we have invited Dr. R.P. Panswal sir. He is a BMS from Agra, UP. Dr. Naveen Upadhyay, he is BMS MD and Government Analyst, Ayurveda Drug Testing Laboratory, Ajmer. Professor Dr. Satish Chand Gupta, BMS MD, Jeevan Jyoti Ayurvedic Medical College, Aligarh. Now, I would like to request our respected Principal KSOP, Professor Dr. K. Nagarajan sir, to deliver his welcome address. Sir, please. Yeah. It's a very honoring moment and a prestigious moment for me to address in this organizing webinar series 1 on Ayurveda at 2047. Basically, Kite School of Pharmacy. Kite School of Pharmacy has got 97th rank in NIRF, National Institute Ranking, announced by the Ministry of HRD, Government of India. And we are running 3 different programs, B Pharma, D Pharma, and we are running with M Pharma also. M Pharma, we are having 3 branches, pharmaceutics, pharmacology, and pharmaceutical quality assurance. So we have got NAC accreditation with A plus grade 5 for 5 years. We have got NK accreditation for 3 years, and we have got ASP as well as PCI approval also. And we have got zero certificate also. The entire Kite group of institutions has got zero certificate by Government of India, EST. I would like to welcome our chief guest today, especially Professor Dr. Satish Chand Gupta, who is BAMS and MD from Jeevan Jyoti Ayurvedic Medical College, Aligarh, UP. Basically from teaching fraternity. Welcome to sir. And I would also especially welcome Dr. Naveen Upadhyay sir, BAMS MD, who is working as a government analyst in Ayurveda Drug Testing Laboratory, Ajmer in Rajasthan. That is from industry. Welcome you, sir. And on behalf of High School of Pharmacy, I would also like to welcome our chief guest, Dr. R.P. Panswal, BAMS from Agra, Uttar Pradesh, who is basically a field practitioner working in the field. So we welcome you, sir, on behalf of High School of Pharmacy. I would also like to welcome our Honorable Director, sir, Dr. Colonel A. Garg, who is absent here, and he is a complete embodiment for organizing all workshops from time to time. And I would also welcome our joint director, his absence here, Dr. Manoj Goyal, sir, for making all the efforts in doing the continuous improvement of the institute. So it's our pleasure to invite you all to this platform, sir. Thank you very much once again. And I would also like to thank our Kite management for facilitating this type of online webinar series. So thank you for Kite management also. And last but not the least, I would like to thank all the participants from the entire Kite group of institutions on behalf of the academic cell. And also would like to thank our MC, Mr. Praveen Kumar Dikshit and Dr. Satyendra Kumar Mishra, who did all the efforts in connecting the resource persons and time to time and trying to making this webinar series such a wonderful manner and doing it meticulously from the day one. So thank you all. Jai Hind. Thank you. Thank you so much, sir, for your hearty welcome address. Sir, time has its own limitation. So with your due permission, I would like to invite our first guest speaker for today's Professor Dr. Satish Chand Gupta, sir, for his lecture. My topic is incompatibility of Ahar and Aushadh Dravyas and their toxic manifestation. In Ayurveda Samhita, this topic is mentioned, name is Viruddha Ahar.
So incompatibility means producing an undesirable effect when used in combination with a particular substances. आहार में हम बहुत सारी चीजें जो अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हम आहार में बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे ऑनियन को मिल्क के साथ यूज किया जाए तो वो आपका बॉडी में टॉक्सिसिटी लॉन्ग टर्म तक यूज करने पर प्रोड्यूस करते हैं। आचार्य चरक मेंशन इन चरक संहिता 18 points in विरुद्ध आहार टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट इज देश विरुद्ध। As Ayurveda mentions 3 types of desha: Anup, Sadharan and Jangal desha. Jangal desha means desert zone. Desert zone के यदि पर्सन यदि वो रुच और तीक्ष्ण आहार का सेवन करते हैं तो वो उनके लिए विरुद्ध है। जैसे वो यदि वो अल्कोहल या ज्यादा स्पाइसी या फूड का सेवन करेंगे तो वो उनकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं रहेगा, वो उनको नुकसान पहुंचाएगा। काल विरुद्ध। काल विरुद्ध से मीन्स है जैसे विंटर सीजन में यदि हम कोल्ड और ड्राई आप आहार सेवन कर रहे हैं, इसी प्रकार जैसे समर सीजन में यदि हम ज्यादा हॉट और स्पाइसी फूड का सेवन करते हैं तो वो भी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो भी आपका विरुद्ध आहार कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, अग्नि विरुद्ध। तो आयुर्वेद अग्नि से मीन्स है डाइजेस्टिव फायर आपका। तो आयुर्वेद में 4 प्रकार की अग्नियों का मेंशन किया गया है आपका। तो मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण और विषम अग्नि। तो इसका मतलब यह है कि यदि आपका किसी का मृदु अग्नि है, आपकी डाइजेस्टिव फायर आपकी स्लो है, और यदि उसको आप कटुरस प्रधान द्रव्य या पंजेंट चीज आप ज्यादा आप खिलाते हो तो वो उसको आपको प्रॉब्लम होने लगेगी या डाइजेशन उसका प्रॉपर नहीं रहेगा। मात्रा विरुद्ध। मात्रा विरुद्ध मतलब का एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं, जो हनी और आपका घी, ये कभी भी हमको इक्वल क्वांटिटी में यूज नहीं करना चाहिए। इक्वल क्वांटिटी में यदि हम लॉन्ग टर्म तक हमको यूज करते हैं तो ये बॉडी में कहीं ना कहीं जाके टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, सातवें विरुद्ध। सातवें विरुद्ध से मीन्स है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको उष्ण और तीक्ष्ण आहार विहार ही साथ में होते हैं। तो ऐसे पर्सन को आप यदि मधुर और शीत रस प्रदान, शीत गुण प्रदान आप आहार देंगे तो वो बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो यदि उसकी आपका बॉडी के लिए आप उष्ण और पंजेंट, हॉट एंड पंजेंट आप सूटेबल है तो उसी प्रकार की डाइट उसको हमको रखना चाहिए। नेक्स्ट, दोष विरुद्ध। तो आयुर्वेदा में हम प्रकृति पढ़ते हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति या कफज प्रकृति या द्वंद्व, मतलब 2 दोषों से मिलके प्रकृति बनती है। तो जैसा बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग आपकी डाइट होना चाहिए। यदि आपकी वातिक प्रकृति है पर्सन्स की और आप वात डोमिनेंट उसको डाइट आप रिकमेंड कर रहे हैं, या फिर आपका शीत उष्ण शीत गुण प्रदान आप भोजन करा रहे हैं, तो वो बॉडी में वात गुण को बढ़ाएगा। इसी प्रकार कफज प्रकृति है तो आपको कफ प्रकृति वाले को आपको शीत स्निग्ध आहार विहार नहीं कराने या गुरु आहार नहीं कराना है, जिससे कि कारण उसका कफ दोष बढ़ जाए। तो प्रकृति को देख के भी हमें डाइट फॉलो करना है, उसके विरुद्ध हमें नहीं जाना है। संस्कार विरुद्ध में हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो हम गलत यूज करते हैं। जैसे चाय जो हम पीते हैं, टी, वो भी आपका संस्कार विरुद्ध है, क्योंकि उसमें हम ग्रीन आप तुलसी डालते हो ग्रीन फॉर्म में आप, और अदरक भी हम डालते हैं आपका। तो ये सब चीज जब मिल्क के साथ कॉम्बिनेशन होती हैं और जब हम उसको इनटेक करते हैं तो वो बॉडी में लॉन्ग टर्म तक हम ज्यादा मात्रा में यूज करें तो वो भी आपके हार्मफुल इफेक्ट दिखाती है। इसलिए जो टी बैग वाली टी है वो ज्यादा बेटर होती है आयुर्वेद के हिसाब से, बशर्ते जो हम घरों में जो चाय बनाते हैं वो ज्यादा सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट, वीर्य विरुद्ध से मीन्स है कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसकी, जैसे कोल्ड पोटेंसी और हॉट पोटेंसी, ऐसे ड्रग्स को हम या ऐसे आहारों को मिला के साथ नहीं लेना चाहिए। इसमें आपका जैसे मिल्क और फिश आपका देखें हम, तो मिल्क और फिश का कॉम्बिनेशन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मिल्क आपका
कोल्ड पोटेंसी या फिश आपकी हॉट पोटेंसी है फिश की, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन यदि लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं जाके टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, कोष्ठ विरुद्ध। कोष्ठ विरुद्ध से मीन्स है कि आपका आयुर्वेद में आपके 3 प्रकार के कोष्ठ माने हैं, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। क्रूर कोष्ठ कोष्ठ से मतलब है आपका जो आपका स्टोमच है उसका आपका पावर आपको पता होना चाहिए। यदि आपका क्रूर कोष्ठ है और उसको हमने माइल्ड लैक्सेटिव दे दिया तो उस पर काम नहीं करेगा, या मुनक्का से उसका विरेचन लैक्सेटिव एक्शन नहीं होगा। उसको आपको, यदि क्रूर कोष्ठी पर्सन है तो उसको आपको कैस्टर ऑयल या अदर चीज देनी पड़ेगी। अवस्था विरुद्ध का मीन्स है कि जैसे बहुत सारे लोग जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करके आए, उसके बाद यदि कोल्ड वाटर पी लेते हैं, फ्रिज का पानी पिया, तो वो आपका क्या है, बॉडी में वात बढ़ा हुआ है एकदम, आपने एक्सरसाइज अभी किया है, वात दोष बढ़ा हुआ है, और आपने शीत गुण प्रदान आपने या फ्रिज का पानी आपने पी लिया, तो बॉडी में और आपके वात बढ़ जाएगी। क्रम विरुद्ध का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग आजकल डे टू डे लाइफ में पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद नहाते हैं, तो ये भी अपनी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। जो डे टू डे लाइफ में जो डे रूटीन है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। पहले नहाना चाहिए, उसके बाद हमें खाना खाना चाहिए। इसमें परिहार विरुद्ध में है कि जैसे आपने अभी कोई हॉट पोटेंसी ड्रग या फूड खाया है, उसी के बाद फिर हम हॉट ड्रिंक्स यदि ले लें, जैसे आपने स्पाइसी जंक फूड खाया, उसके बाद आपने जिंजर टी या हॉट ड्रिंक्स आपने लिया, तो ये भी आपका बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपको हॉट के बाद थोड़ा ब्रेक या उसको डाइजेस्ट होने के बाद ही दूसरी चीज आपको लेना है। उपचार विरुद्ध में हमें, जैसे आयुर्वेद ट्रीटमेंट जब भी हम करते हैं तो आयुर्वेदा पंचकर्मा ट्रीटमेंट में हम घृतपान कराते हैं पेशेंट्स को। तो जब भी हम घी पिलाते हैं तो घी पिलाने के बाद हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उसको कभी भी फ्रिज का रेफ्रिजरेटर वाला वाटर नहीं पीना। को हमेशा घी को डाइजेस्ट करने के लिए आपको हॉट वाटर या हमेशा रिकमेंड करना चाहिए। यदि वो ठंडा पानी यदि शीत आपका जल का सेवन करता है तो वो कहीं ना कहीं वो इंडाइजेशन वाली पोजीशन क्रिएट बॉडी में होती है। पाक विरुद्ध अब हम कई चीजें, हम जो फूड का प्रिपरेशन होता है उसमें देखते हैं कि कुछ चीजें अंडर कुकिंग या ओवर कुकिंग या बर्निंग ड्यूरिंग प्रिपरेशन को जल जाती हैं, तो ऐसी चीजों को हमें यूज नहीं करना चाहिए। जैसे चावल हमने पकाया, ज्यादा जल गया या लग गया कुकर में, तो उस चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। या जो मैंने बॉइल्ड एग है वो प्रॉपर बॉइल नहीं हुआ है तो वो भी आपको नहीं खाना चाहिए। हम जैसे दूध का आम के साथ सेवन करते हैं बहुत सारे लोग, तो हमेशा ध्यान रखें दूध को खट्टे पदार्थों के साथ, आम या नींबू या कोई भी चीज उसके साथ सेवन नहीं करना है ना। तो ये क्या है, क्योंकि जैसे दूध का मधुर रस है, आम का आम्ल रस है, तो कभी भी मधुर रस का अम्ल रस के साथ कॉम्बिनेशन करोगे तो वो आपको दिक्कत करेगा। हृदय विरुद्ध, यदि हृदय विरुद्ध से मतलब है यदि कोई डाइट या कोई आहार आपका मन नहीं कर रहा है और फिर भी यदि उसको जबरदस्ती आपको खाने के लिए कहा जाए, तो वो भी बॉडी में जाके टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है और उसको जबरदस्ती नॉन वेज खिलाया जाए तो वो बॉडी में जाके कहीं ना कहीं टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगा। तो मन के अनुरूप आपको भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट, संपद विरुद्ध। संपद विरुद्ध का मीन्स है कि आपको, जैसे कुछ फूड ऐसे होते हैं जैसे इमेच्योर कंडीशन में उसका सेवन नहीं करना है, या ज्यादा मैच्योर्ड हो गया, ओवर मैच्योर्ड, तब सेवन नहीं करना है। जैसे आपका बनाना है तो ये आपका प्रॉपर मैच्योर्ड नहीं हुआ तब नहीं खाना चाहिए, और ओवर मैच्योर्ड हो गया तब भी नहीं खाना चाहिए। तो उसकी कंडीशन को देखते हुए हमें सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट, विधि विरुद्ध। विधि विरुद्ध में हम देख सकते हैं कि जो आजकल हम खाना खा रहे हैं, जितना भी एक ट्रेड चल गया है कि बफर सिस्टम जो है आपका, जितनी पार्टीज होती हैं सब खड़े होके ग्रुप में खाना खा रहे हैं, तो आयुर्वेद मतानुसार ये सिस्टम गलत है। आयुर्वेद के अनुसार एकांत और शांत चित्त मन से बैठ के भोजन करना चाहिए।
तो ये जितना भी पब्लिक में हम जो मील करते हैं खड़े होके, ये कहीं ना कहीं इंडाइजेशन की कंडीशन क्रिएट बॉडी में करता है। अब कंटेम्परेरी प्रैक्टिस में हम देखें विरुद्ध आहार, तो विरुद्ध आहार के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये अपनी बॉडी में डिफरेंट लेवल पे क्या क्या काम करती है। व्हेन ए स्पेसिफिक द्रव्य कंज्यूम्ड इफ malformed during the process of digestion becomes viruddha to the body. When a dravya is not transferred properly into end products by the process of digestion, even then it acts as viruddha. The food which vitiates the dosa without expelling it out from the body and acts as धातु प्रत्यनिक term as viruddha. वही मैंने जो आपको बताया कि ये सब जितने विरुद्ध आहार है ये बॉडी में जाके आपके डाइजेशन की प्रोसेस को हैम्पर करते हैं। जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो प्रॉपर नहीं बनता है और इंडाइजेशन की कंडीशन ये लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है, तो उससे आपके बहुत सारी डिजीज कंडीशन क्रिएट होती है। तो आचार्य चरक ने विरुद्ध आहार के कारण आप लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं तो बहुत सारी डिजीज कंडीशन क्रिएट होती है। इनफर्टिलिटी, आपका फिस्टुला इन एनो, आपका एनीमिया है, और आईबीएस की कंडीशन है, एसिडिटी है, स्किन डिजीजेज है और जेनेटिक डिस्टरबेंसेज है। ये सभी कंडीशंस आपका विरुद्ध आहार का लॉन्ग टर्म तक यूज करने पर होती है। अब ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, यदि कोई विरुद्ध आहार का लॉन्ग टर्म तक सेवन करता है तो आयुर्वेद में उसका ट्रीटमेंट बताया है कि आपको सबसे पहले तो जो विरुद्ध आहार आप कर रहे हैं उस कॉज को आपको रिमूव करना है, ठीक है। सेकंड, आप पंचकर्मा के थ्रू आप विरुद्ध आहार आपने सेवन यदि किया भी है तो आप बॉडी को डिटॉक्स कराना है, और डिटॉक्स के थ्रू आप जो वमन प्रोसीजर है या वमन कर्मा है, मेडिकेटेड एमिसिस और विरेचन, आपका पर्गेशन प्रोसेस, इनके बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स प्रैक्टिस में मिलते हैं। साथ में पैलेटिव थेरेपी, पैलेटिव ट्रीटमेंट करके हम जो विरुद्ध आहार हमने सेवन किया है उससे हम उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। ये कॉमन विरुद्ध आहार इन डे टू डे लाइफ जो मैंने अभी आपको बताए हैं, वो एक ब्रीफिंग मैंने यहीं आपको दिया है। तो मिल्क शेक है, आपका फ्रूट सैलेड है, हम जूस का जो सेवन कर रहे हैं, आइसक्रीम, अल्कोहल, आफ्टर हॉट एंड स्पाइसी मील हमने खाया है उसके बाद जस्ट हम आइसक्रीम ले रहे हैं, टेकिंग बाथ आफ्टर फूड, टेकिंग कोल्ड वाटर बाथ आफ्टर एक्सपोजर टू सन, टेकिंग टी कॉफी, और उसके बाद हम फिश का सेवन कर रहे हैं, कंज्यूमिंग कर्ड एंड नाइट। ये बहुत याद रखना है आप सभी को कि नाइट में दही का सेवन नहीं करना। नाइट में दही का यदि रेगुलर सेवन आप करोगे तो उसके कारण भी आपका ये काफी बॉडी चैनल्स में ब्लॉकेज की कंडीशन क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म तक, आप यदि ऐसा करते हैं। थैंक यू टू ऑल। Sir, your presentation was very full of knowledge, and you have summarized all the foods which we are used in our daily practices, but it should be avoided. Because, sir, you are practicing since more than a decade on hair and skin diseases. So, could you tell please which type of food habits we should adopt to avoid hair fall or to avoid skin diseases? हेलो, हाँ Sir. हम Yes, sir. हाँ In प्रवीण your जी, presentation, you have compiled all आई the एम things. रनिंग जानवी आयुर्वेदा हेयर एंड स्किन क्लिनिक इन अलीगढ़, और आई हैव ट्रीटेड सो मेनी पेशेंट्स ऑफ alopecia areata, alopecia totalis, and alopecia universalis. And I am continue working seborrheic dermatitis, hair fall, and scalp psoriasis also. Sir, because you are practicing hair diseases and hair fall problems, so could you tell please which type of food habit we should follow to avoid such problems in the very early age? Because there is a general perception that there is no treatment for falling hairs, and if at all we are using vitamin A and vitamin A or vitamin K or vitamin E, but the long-term effect is not very much satisfactory. So, which type of fooding habits we should follow from the beginning so that it could be avoided? These are in hair fall conditions. I recommended antioxidant drugs, herbal drugs, as
अमल की, आंवला, गिलोय and Mustaq, Nagarmota, and actually recommended diet, nutritious diet. Hello. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Nutrition. I think alopecia is main cause in young age due to bad lifestyle, because most of persons, most of IT professionals came to my clinic, and I think the cause of alopecia problem is in college life, whole college life, whole night पूरी रात पढ़ना है, 5 बजे सोना है, 11 बजे जग उठना है, तो ये सभी हम लाइफ स्टाइल यदि हम रेगुलर डिस्टर्ब रखते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी को वो हैम्पर करता है। और मोस्टली एलोपेशिया पेशेंट्स में हेयर फॉल का सबसे बड़ा कॉज आपका बॉडी में पित्त दोष का एग्रीवेटेड होना है। हाइपर एसिडिटी की कंडीशंस बहुत पेशेंट्स में मिलती है, और हाइपर एसिडिटी का कॉज आप बैड फूड हैबिट्स, या आपका स्पाइसी जंक फूड या पैक्ड फूड पे डिपेंडेंसी ज्यादा रहना, तो ये सभी कारण आपका कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं तो वो आपका हेयर फॉल या एलोपेशिया में रेस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए मैं बस न्यूट्रिशियस डाइट और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जिनके अंदर ज्यादा होता है, स्पेशली मैंने आपको बताया ही आपको कि आंवले का हम रेगुलर यूज करें, आंवला है, गिलोय है, ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करें तो हमें प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ेगी। Okay. So in a nutshell, you want to say कि the youngster should follow the regular fooding habits, they should follow the healthy food habits, and they should take proper sleep, avoid using laptops and mobile phones till late night. Yes, Because sir. these are the aggravating factors, which Yes, causes hair fall and all these things. Mm-hmm. Okay. So I must say that, sir, you have summarized all the Viruddha Ahar in a single presentation, and it was a wonderful presentation containing all the incompatible food combinations what we are using in our day-to-day life, and it should be avoided. Thank you so much, sir, for sparing your time with us and accepting our invitation to share your expertise. Before saying thanks to you, sir, I must request our respected principal, sir, to give a token of appreciation in the form of certificate. Sir, please. Dr. Satish, sir, kindly accept this certificate from our side as a gratitude. Thank you, sir. Before moving towards next session, I would like to introduce our next speaker, Dr. Naveen Upadhyay, sir. He is a government analyst come in charge in the government Ayurveda drug testing laboratory, Ajmer, Rajasthan. He is currently working as a government analyst in a state drug testing lab for 6 years. His expertise in handling HPTLC, HPLC, FTIR, AS, and he's also having experience in handling samples from testing and authentication of standardization as per testing protocols of API, UPI, and IP. Sir is currently impaneled with member in state level committees formulating a regulatory framework and approval of new drugs and labs in Rajasthan state, and also in state Ayurveda College, Jaipur. Thank you very much. Am I audible? Yeah, sir, you are audible. Thank you, Kite Institution, for inviting me as a guest lecturer. I would like to thank Dr. Garg sir, Dr. Manoj Goyal ji, Dr. Elawat ji, the organizing committee members, Dr. Nagarajan ji, Dr. S.K. Mishra ji, and my brother Praveen Kumar Dikshit ji. Thank you all. Ministry of Ayush ने हर्बल मेडिसिन को जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए दे हैव स्टार्टेड अ प्रोग्राम। जैसा आप जानते हैं 75 इयर्स हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस को, और आयुर्वेद चूंकि इंडिया का ट्रेडिशनल मेथड है ट्रीटमेंट का, और बिफोर अराइविंग ऑफ एलोपैथी आयुर्वेद वाज द सोल क्यूरर ऑफ डिसीजेस इन इंडिया। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये इनिशिएटिव लिया है 2014 एट द रेट आयुर्वेद का, 2047 एट द रेट आयुर्वेद का,
जिसमें कि जन जन तक लोगों को ये बताया जा सके कि आयुर्वेद क्यों इम्पोर्टेंट है और उसकी क्या ज़रूरत है। और मुझे बहुत खुशी है कि काइट इंस्टीट्यूट ने इसको प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की। सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, सभी फैकल्टी मेंबर्स ने और स्टूडेंट्स, आप लोगों का भी बहुत योगदान रहा होगा इसमें और आप लोग बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। सो द टॉपिक मैं अब शुरू कर रहा हूँ। टॉपिक जो है, जो मुझे मिला है, वो है आयुर्वेद फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो बेसिकली ओल्ड एज is a phenomena in which a person who carries out his work, whose day-to-day work, cannot complete it efficiently. आयुर्वेद में इस बीमारी के लिए इस टर्म के लिए जरा, वार्धक्य, ये शब्द आते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं हम लोग कि ओल्ड एज में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ रही है। एज अ पर्सन गेट्स ओल्ड, उसके बॉडी के पार्ट्स, चूंकि पैदा होने के बाद से अब तक उसके बॉडी के पार्ट्स कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो। वो वियर एंड टीयर होता रहता है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये आप लोग सब जानते हैं। और वियर टीयर होने के बाद कुछ समय के बाद वो अपने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस भी नहीं कर पाता है। इस कारण से कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम्स, या आप ये कह सकते हैं कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, सेनिलिटी, मतलब मानसिक, इस तरह की समस्याएं उसको घेर लेती हैं। व्यक्ति बुजुर्ग कब होता है? क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें, मतलब उम्र के हिसाब से देखें, तो व्यक्ति बुजुर्ग अराउंड 65 इयर्स की उम्र के बाद से होने लग जाता है, जब उसमें अपने काम को करने की क्षमताएं भी खत्म हो जाती हैं। पर हर व्यक्ति 65 इयर्स पे ही बुजुर्ग नहीं होता है। हमारे आसपास के लोगों को अगर देखें, तो आज का जो वातावरण है उसमें हम देख सकते हैं कि एजिंग के जो भी लक्षण हैं वो आज 65 ईयर से पहले ही दिखने लगते हैं। तो एजिंग दो टाइप की मॉडर्न साइंस बताता है, क्रोनोलॉजिकल एजिंग एंड बायोलॉजिकल एजिंग। क्रोनोलॉजिकल एजिंग इज इरिवर्सिबल, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, दैट मीन्स वो नेचुरल है। बायोलॉजिकल एजिंग कैन बी रिवर्स्ड और कैन बी स्लोड डाउन, दैट मीन्स डिलेड। So there are various numbers of factors which causes biological aging. आप लोग ज्यादातर लोग जानते होंगे फ्री रेडिकल्स का, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, टॉक्सिन्स का नाम सुना होगा। ये फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करती रहती है, वो हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर्स को हैम्पर करते हैं, जिससे सेल्स में डीजनरेशन ज्यादा होते हैं। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, या यूं कहें कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिक प्रोटीन्स in our body leads to biological aging. Modern science किसी व्यक्ति की उम्र को बढ़ाने के लिए, उसकी लॉन्गेविटी को बढ़ाने के लिए बहुत रिसर्च कर रहा है। मॉडर्न साइंस ने ये पाया है कि नॉर्मली जो भी व्यक्ति के अंदर बुढ़ापा आ रहा है वो उसके डीएनए से जुड़ा है कहीं ना कहीं। लेकिन मॉडर्न साइंस के पास कोई मेथड ऐसा नहीं है जिससे कि वो जरा अवस्था को रोक सके या बायोलॉजिकल एजिंग को डिले कर सके। परंतु आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि ये जरा अवस्था दो प्रकार की बताई गई है, कालज और अकालज। कालज मतलब नेचुरल, व्यक्ति की अगर उम्र हो रही 70 साल और वो 70 साल का दिख रहा है, 70 साल जैसी एक्टिविटी कर रहा है, तो वो है कालज। लेकिन व्यक्ति 50 इयर्स का है, 40 इयर्स का है और वो 70 इयर्स के जैसा एक्ट कर रहा है, तो वो है अकालज। अकालज जरा जो है, अकालज वही बायोलॉजिकल एजिंग है जो मैंने आपको बताया था। जरावस्था का मूल कारण आयुर्वेद में बताया गया है दोष, धातु और मल। तीन चीजें आती हैं, दोष, धातु और मल। इन तीनों के अंदर जब एक जैसा सामंजस्य नहीं रहता, तो ऐसे में शरीर के अंदर जरावस्था के लक्षण प्रकट होते हैं। दोष, वात, पित्त और कफ। तीन दोष आयुर्वेद में बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। धातु 7 बताई गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है। और मल, मल भी हमारे यहाँ पे स्वेद और मल और मूत्र। तो ये जो तीन चीजें बताई गई शरीर में, अगर इनका एक लेवल मेंटेन न रहे बॉडी के अंदर, तो वो जरा अवस्था के कारण बन जाता है।
वाग्भट एक आचार्य हुए थे, वाग्भट एक ऋषि हुए थे हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से जरावस्था मतलब बुढ़ापे के बारे में बताया कि कौन से एज ग्रुप वाले लोगों में किन किन चीजों की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। उन्होंने शुरुआत की थी 41 से लेकर मतलब 40 से 50 साल की उम्र के बीच में लोगों में त्वचा इसका नाश होता है। 50 से 60 साल के बीच में दृष्टि आंखों का, 60 से 70 साल के बीच के व्यक्तियों में शुक्र का रिप्रोडक्टिव पावर, 70 से 80 इयर्स के बीच में लोगों का विक्रम मतलब शरीर में कुछ करने की क्षमता, 80 से 90 इयर्स के बीच के लोगों में बुद्धि का ह्रास, और 90 से 100 के बीच के लोगों में जो कर्मेंद्रियां हैं वो शिथिल हो जाती है, कर्मेंद्रियां काम करना बंद करते हैं, हाथ पैर सब काम करना बंद कर देते हैं। अब आते हैं कि जरावस्था में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको हम किस तरह से रोक सकते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें समझने की बात सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जैसा इससे पहले जो वक्ता थे डॉक्टर सतीश जी उन्होंने ये बात बताई कि हमें सबसे पहले अपने आहार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। विरुद्धाहार का एक एस्पेक्ट उन्होंने उठाया, वो हमें कभी सेवन नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें हमेशा संतुलित और प्राकृतिक भोजन करना चाहिए। परंतु संतुलित का बेसिक मतलब यह है कि जिस व्यक्ति की जो प्रकृति है, जिस व्यक्ति की बॉडी का टाइप जैसा है वैसा भोजन करना। नॉर्मली प्रकृति 3 तरह की बताई गई है, एक नॉर्मल सेंस में बताऊं, वातज, पित्तज और कफज, क्योंकि ये 3 दोष हैं। तो वातज प्रकृति का व्यक्ति अगर कोई है तो वो उसके अंदर वात मतलब वायु, तो वायु का एक इंपॉर्टेंट जो गुण होते हैं उसमें एक गुण होता है रुक्षता। तो कई आप नोटिस करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स में, अपने आसपास कलीग्स में, फैमिली मेंबर्स में देखेंगे तो कुछ आप देखेंगे, एक जनरल मैं आपको बस जानकारी दे रहा हूँ, उससे आप समझेंगे कि ये सब बातें साइंटिफिक हैं। वातज प्रकृति के व्यक्ति की स्किन हमेशा ड्राई होगी। एक ही पॉइंट बता रहा हूँ मैं ताकि इसको आप कभी एनालाइज करें। तो स्किन को कभी आप देखेंगे तो कभी आप लाइन खींचेंगे, नाखून से करेंगे तो आप देखेंगे कि ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा, तो वो वातज प्रकृति उसकी होने की संभावना ज़्यादा है। पित्तज वाले की स्किन आप देखेंगे तो लाल और चमकती हुई रहेगी उसकी स्किन, वो अलग से व्यक्ति दिखाई देगा, अलग से दिखाई देगा कि वो लालिमा है, बॉडी टेम्परेचर उसकी स्किन का थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और जो कफज वाला रहेगा उसकी बॉडी हल्की ठंडी रहेगी और स्किन उसकी ऑयली रहेगी। तो इस तरह से वातज, पित्तज और कफज ये 3 जो प्रकृतियां प्रमुख रूप से होती हैं, इनके अनुरूप भोजन करना चाहिए। अनुरूप का मतलब? अनुरूप का मतलब वातज अगर व्यक्ति है उसकी बॉडी में ड्राइनेस ज़्यादा है तो उसको ऐसे भोजन लेने चाहिए जो स्निग्ध हो। स्निग्ध मतलब इसके अंदर फैटी कंटेंट, ऑयली कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे घी, तेल। कोई व्यक्ति पैथिक है और उसकी स्किन हल्की गर्म है, लाल है, उसके शरीर में ऊष्मा ज़्यादा है, इसलिए वो पैथिक प्रकृति का है। तो ऐसे में उसको शीतल, ठंडे, मीठे ऐसे भोजन का सेवन करते रहना चाहिए। और कफज प्रकृति के व्यक्ति के अंदर वैसे ही कफ बहुत जाता है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर पहले से ही शरीर में फैटी सब्सटेंस ज्यादा है, तो उसको ठीक उल्टा, रूखा, कड़वा, तीखा इस तरह का भोजन करना चाहिए। इसको कहते हैं संतुलित। दूसरी चीज जो हम नॉर्मली आज के वक्त में कॉमनली मिस कर देते हैं आहार के मामले में, वो है ताजा और गर्म खाना। तो ऐसे में वो शरीर के अंदर जाकर के फिर दूसरे नए-नए टॉक्सिन्स पैदा कर सकता है। इसीलिए कोशिश ये करें कि ताज़ा और गर्म भोजन जहाँ तक संभव हो वहाँ तक लेने का समय वो करें। नेक्स्ट, आहार में आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो बहुत ज़रूरी है, वो है मात्रा। कोई भी चीज़ अगर अधिक मात्रा में ले ली जाए शरीर के अंदर तो शरीर को नुकसान देती है। तो भोजन चाहे हल्का हो, चाहे भारी हो, इसकी मात्रा का हमेशा सबको ध्यान देना है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग ज़्यादातर लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं, वो है समय पर भोजन करना। समय पर जो व्यक्ति भोजन करता है, जरावस्था के लक्षण उसमें जल्दी प्रकट नहीं होते, जल्दी मिलते नहीं है। ये था पहला टॉपिक। दूसरा पॉइंट है निद्रा, नींद। नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आज के वक़्त में जो लोग सीनियर सिटीज़न्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनमें नींद की कमी तो बहुत प्रायः देखी जाती है। और जो यंगस्टर्स हैं, वो भी मोबाइल और मूवीज़ देखने के चक्कर में रात भर जगते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे शरीर को टुवर्ड्स एजिंग, बायोलॉजिकल एजिंग बढ़ाने में हेल्प करती है। आहार और नींद के बाद थर्ड पॉइंट जो आता है, वो है आपकी दिनचर्या। आपकी दिनचर्या, अगर आयुर्वेद मतानुसार हम बात करें तो दिनचर्या डिसिप्लिन सिखाता है। दिनचर्या आयुर्वेद में चरक चिकित्सा स्थान के अंदर बताया गया है कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए और आपका दिन का समापन कैसा होना चाहिए।
पर इसको अगर शॉर्ट में समराइज करें तो दिनचर्या आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपके प्रकृति के अनुकूल हो और जो आपकी एनर्जी को वेस्ट ना करे, उसे कहते हैं दिनचर्या। तो दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी प्रकार से ऋतुचर्या एक बहुत अच्छा सिद्धांत आयुर्वेद के अंदर बताया गया है। आप लोग सब जानते हैं कि 6 ऋतुएं हैं भारत में प्रमुख रूप से। उन सभी 6 ऋतुओं में जिस तरह से एनवायरनमेंट में चेंज होता है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी चेंज होता है। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी चूँकि बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। कल आप लोग के यहाँ हुई, आज हमारे यहाँ हो रही है। तो ये जो बारिश का जो मौसम होता है, ये मौसम अक्टूबर में बारिश का मौसम नहीं है। ऐसे में अक्टूबर में अगर बारिश हो रही है, तो ये ठंडक बढ़ाएगी अचानक से। और जब ये अचानक ठंड बढ़ेगी, तो हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है। और अगर व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहता है, तो जरावस्था के लक्षण, बुढ़ापे के लक्षण उसमें दिखने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है पंचकर्म। पंचकर्म के ऊपर भी जैसा कि आप लोग अब थोड़ा एक आइडिया आपको लग चुका है कि 5 कर्म ऐसे बताए गए हैं आयुर्वेद के अंदर, जिनका प्रयोग करने के बाद शरीर के अंदर से बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। शरीर अपने आप से रिजुविनेट हो जाता है। जैसे वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, बस्ती और रक्तमोक्षण। ये 5 ऐसे कर्म हैं। वमन का मतलब होता है एमेसिस, उल्टी कराना। ये मेडिकेटेड प्रोसेस होती है। सेकंड होता है विरेचन, पर्जेशन, दस्त लगाना, ये भी मेडिकेटेड होता है। थर्ड नंबर पे होता है शिरोविरेचन। शिरोविरेचन का मतलब है कि हमारे जो हेड से लेकर के जो हमारे साइनसेस हैं, वहां पे कोई भी चीज अगर जमा है, इकट्ठा है, तो उसको बाहर निकालना। बस्ती, चौथा जो कर्म बताया गया है। बस्ती एनीमा का एक प्रकार है, आप एनीमा उसको बोल सकते हैं, हालांकि एनीमा नहीं है, लेकिन एनीमा जैसा ही है। मेडिकेटेड लिक्विड को गुदा मार्ग में डाल करके वापस से उस मेडिकेटेड लिक्विड को निकालना, तो इससे लोअर जो हमारा ट्रैक्ट होता है जीआई का, वो क्लिंज हो जाता है। और लास्ट में आता है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण का मतलब होता है कि शरीर में से कुछ मात्रा में खून को बाहर निकालना, तो इससे दूषित खून जो होता है वो बाहर निकल जाता है। अगर आप गौर करें तो ये जो पांचों चीजें हैं, ये पांचों चीजें शरीर के पूरे बॉडी पार्ट्स को क्लीन करती है। तो पंचकर्म के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आप जरावस्था को रोकने के लिए यूज कर सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार, वो है अभ्यंग। अभ्यंग का मतलब होता है मालिश। तो ऑयली प्रिपरेशंस को लेकर के अगर शरीर के ऊपर उसे अप्लाई किया जाए रेगुलरली, तो जो हमारी स्किन के अंदर की जो स्ट्रेंथ है और स्किन के अंदर जो डक्टिलिटी, जिसको हम कहते हैं कि भाई लचीलापन, वो मेंटेन रहता है। तो अभ्यंग करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है योग, ध्यान और प्राणायाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जरावस्था में मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर क्षीण होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। हमने देखा कि 80-90 साल के आसपास उम्र आते आते बुद्धि का ह्रास हो जाता है, बुद्धि कम हो जाती है। तो ऐसे में जो व्यक्ति योग, ध्यान और प्राणायाम, इन तीनों का यूज करता है। योग मतलब आप नॉर्मल टर्म में बात करें तो आसन समझ सकते हैं, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज। ध्यान, मन को एकाग्रचित करना, वो ध्यान है। और प्राणायाम, सब लोग जानते हैं प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाता है। तो योग, ध्यान और प्राणायाम, ये 3 चीजें अगर इसी रूप में हम अगर मानते रहें, इसको पालन करें, तो व्यक्ति बहुत समय तक युवा बना रह सकता है, या जरावस्था के उसके अगर कोई लक्षण है तो वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, रुक जाएंगे। सद्वृत्त, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ज्यादा लोग चर्चा नहीं करते, और लोग ये समझते नहीं है या समझना नहीं चाहते कि सद्वृत्त का क्या उपयोग है। हमारी उम्र बढ़ रही है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, परंतु अगर हमारे कर्म, हमारा हम समाज में क्या कैसे रह रहे हैं और हमारा कर्म क्या है, अगर ये चीज हमारी समाज के अनुकूल नहीं है, तो हमारी जरावस्था और जल्दी आती है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आदमी का बुद्धि, आदमी का मन, आदमी कैसा है अंदर से, वही बाहर दिखता है। अगर मैं अंदर से नहीं हंसूं, तो मैं बाहर से आपको हंसता हुआ नहीं दिखूंगा, आप पकड़ लेंगे कि आप नहीं हंस रहे। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि व्यक्ति मन से अच्छा हो, मन से वो सभी प्राणियों, सभी लोगों के बारे में हमेशा कल्याणकारी, हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचता हो। ऐसे व्यक्तियों को सदाचारी बोला जाता है, और ऐसे व्यक्तियों का जीवन सद्वृत्त कहलाता है। और अगर जरावस्था को रोकना है या जरावस्था से संबंधित व्याधियों का इलाज करना है, तो सद्वृत्त का पालन करना बहुत
लेकिन यहाँ पर एक मेडिसिन का भी रोल है। जो मेडिसिन जरावस्था को रोकती है, जरावस्था को ठीक करती है, उनको आयुर्वेद में रसायन नाम दिया गया है। रसायन। लाभोपायो हि शस्तानाम रसादीनाम रसायनम, एक ये छोटी सी डेफिनेशन है संस्कृत में। शरीर के अंदर 7 धातुएं हैं, मैंने आपको बताया था, जिसकी शुरुआत रस से होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जो रस सबसे पहली धातु है, उसको शरीर में सही रूप से बनाना, ये काम रसायन का है। मतलब रसायन की औषधियों का सेवन करने वाले व्यक्ति के शरीर में सबसे पहली जो धातु है रस, वो अच्छी बनेगी। और जब पहली धातु अच्छी बनेगी तो उसके बाद आने वाली 6 धातुएं भी अच्छी बनेंगी। और जब धातुएं पुष्ट होंगी, धातुएं अच्छी होंगी, तो फिर हमारा शरीर भी जरावस्था से काफी दिनों तक बचा रहेगा, या जरावस्था की में भी हम हमारे सभी क्रियाकलापों को कर पाएंगे। अब इसके बाद मैं एक टॉपिक आपको एक शॉर्ट में बताना चाहता हूं, जो कि आप यूं समझ सकते हैं कि इस टॉक शो का टेक अवे भी रहेगा। नॉर्मली हम हमारी लाइफस्टाइल को जिस तरह से जीते हैं, अगर उस लाइफस्टाइल में हम कुछ चेंजेस कर दें, तो हम जरावस्था या सीनियर सिटीजन, जो हमारी जो सीनियर सिटीजन्स को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें हम काफी हद तक उसमें उनको रिलीफ दे पाएंगे। जैसे कि सुबह उठने के बाद अगर व्यक्ति गुनगुने जल का सेवन करता है, सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सिर्फ सुबह उठने के बाद केवल गुनगुने जल का किया, तो गुनगुने जल से हमारे शरीर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम शुरू हो जाता है। ये एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, जो जीआई ट्रैक्ट को पूरा स्टिमुलेट कर देता है, और ऐसे में डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होने लग जाते हैं, और मल की जो क्रिया है वो सुचारू रूप से होती है। इससे शरीर आने वाले समय में, मतलब दिन के बाकी बचे हुए कामों के लिए स्फूर्ति उसमें शरीर में मिलने लग जाती है। तो अगर हर व्यक्ति सुबह उठने के बाद केवल गुनगुने पानी से दिन की अगर शुरुआत करता है, तो वो भी अपनी जरावस्था को रोकने में काफी हद तक सहयोग करेगा। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद के अंदर, जैसा कि हम अभी चर्चा पहले भी कर रहे थे, आयुर्वेद के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मेडिसिन बहुत सारी हैं, जिनको कि ये बताया जाता है कि इनके अंदर रसायन गुण हैं, या ये जरावस्था को रोकती हैं। उसमें सबसे प्रमुख जो कुछ औषधियां हैं, जैसे आमल की, आंवला, एम्बलिका ऑफिसिनालिस, हरित की, टर्मिनलिया चेबुला, भलातक, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, गिलोय, टिनोस्पोरा, कॉर्डिफोलिया, अश्वगंधा, विदैनिया सोमनिफेरा, शतावरी, एस्परागस, रेसमोसा। ये जो मैंने मेडिसिन अभी आपको बताई, ये सारी मेडिसिन जरा अवस्था को रोकने में मददगार है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर जितने भी हमारे शरीर को जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, नॉर्मली वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स अगर हमें फूड से नहीं मिल पाते, भोजन से नहीं मिल पाते, तो ये औषधि हमें प्रोवाइड कराती हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर के जो दूसरे जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों को चलाने में भी बहुत योगदान देती है ये मेडिसिन। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, आयुर्वेद के अंदर कोल्ड प्रिपरेशंस का बहुत ही महत्व है। कोल्ड प्रिपरेशंस को ये माना जाता है कि ये शरीर के लिए बेस्ट रसायन है, और जरावस्था की व्याधियों में गोल्ड साइंटिफिकली प्रूवन है कि स्वर्ण का प्रयोग अगर किया जाए सही तरीके से, तो वो जरावस्था के लक्षणों को बहुत हद तक रोक सकता है, या यूं कहें कि डिले कर सकता है। नॉर्मली बुजुर्ग होने के बाद व्यक्ति के मस्कुलोस्केलेटल पेन्स रहते ही हैं, उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। आर्थराइटिस में गोल्ड प्रिपरेशंस का बहुत अच्छा यूज है, बट उसमें मात्रा का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए कि हमें कितनी मात्रा में लेना है, और गोल्ड के फॉर्म का भी ध्यान रखना होता है। गोल्ड सॉलिड फॉर्म में नहीं लिया तो उसमें भस्म बनाई जाती है, जिसको कि आप नैनो पार्टिकल बोलते हैं, तो उसमें कन्वर्ट करके हम देते हैं, और उसमें बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिले हैं। ये जो मैंने आपको अभी एक जनरल मेडिसिन बताई हैं, इनका सेवन रेगुलर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में करते रहना चाहिए। नॉर्मली हम लोग हमारे घर में च्यवनप्राश रखते हैं, च्यवनप्राश ज्यादातर लोगों के घर में मिलता है, और खासकर सर्दियों में लोग खाते हैं च्यवनप्राश। च्यवनप्राश एक रसायन है, इसका प्रयोग केवल सर्दियों में ना करके आपको पूरे 12 महीने करना चाहिए। सिर्फ सर्दियों में नहीं, पूरे मौसम में, चाहे गर्मी हो चाहे बारिश का मौसम हो, सभी मौसमों के अंदर च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि च्यवनप्राश इजिली अवेलेबल है, हर आदमी उसका सेवन कर सकता है। तो अगर 12 महीने अगर उसका सेवन करता है दूध के अनुपान के साथ, मतलब दूध के साथ, मिल्क के साथ,
पानी के साथ नहीं, चाय के साथ नहीं, या ऐसे ही खाली नहीं खाना है, कोशिश करें दूध। तो ऐसे में उसका अच्छे रिजल्ट उसमें मिलते हैं अपने को। तो इस तरह से हम जरावस्था के बढ़ते हुए लक्षणों को इस प्रकार से हम लोग रोक सकते हैं। मतलब ये जो अभी हमने डिस्कशन किया वो था प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अब हम जरावस्था के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि अगर व्यक्ति बुजुर्ग हो रहा है या बायोलॉजिकल एजिंग के कारण उसके शरीर के अंदर ऐसे चेंजेस हो गए हैं जिसके वजह से वो उसके शरीर काम नहीं कर पा रहा सही तरीके से, तो ऐसे में आयुर्वेद क्या कहता है? तो यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्तियों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सारी समस्याओं को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैंने उसमें से मेनली 3 समस्याओं को लिया है जो कि सबसे कॉमनली हम देखते हैं कि बुजुर्गों में होती हैं। एक है न्यूरोलॉजिकल या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, हड्डियों में, शरीर में दर्द होना। एक है कार्डियोवैस्कुलर हार्ट अटैक होना या किसी प्रकार का हाइपरटेंशन या उस तरह के लक्षण। और तीसरा है रेस्पिरेटरी। ये जितने भी चीजें हैं, ये तीन चीजें कॉमनली हम देखते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति के अंदर मिलता है। सांस लेने में तकलीफ होना, हार्ट की प्रॉब्लम, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। तो ये जो 3 चीजें मैं बता रहा हूँ, उसमें जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये कहता है कि सबसे पहले ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों को क्लासिफाई किया जाता है इनकी प्रकृति के अनुसार, इन द सेंस कि कौन से दोष के कारण से ये बीमारियां हो रही हैं। जैसे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से वात, वायु, ये माना जाता है कारण। वात मैंने आपको बताया कि वात रूखा होता है। स्किन मैंने बताई थी, आपको याद होगा कि स्किन रूखी हो जाती है ऐसे लोगों की। तो ऐसे लोगों में ऐसे प्रिपरेशंस का हमें यूज़ करना है जो उसके रूखेपन को खत्म करे। तो इसीलिए ऐसे लोगों में ऑयल का मसाज करते रहना चाहिए हमें। हेलो? ऑयल का मसाज ऐसे लोगों में करना चाहिए। स्वेदन, फोमेंटेशन कहते हैं। फोमेंटेशन इन द सेंस उसके अंदर भाप लगाना शरीर के अंदर। और पंचकर्म में से बस्ती, विरेचन, जिससे कि मल शरीर से बाहर निकले, इंटेस्टाइन हमारे क्लियर हों, ऐसी चीजों का प्रयोग इसमें आयुर्वेद में बताया गया है इन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में मैंने आपको बताया गूगल, स्वर्ण, इनका बहुत अच्छा यूज है जो कि हम इसमें बुजुर्ग व्यक्तियों में कर सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर बीमारी की बात करें, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट की बीमारी की बात करें अगर हम, तो हम देखते हैं कि ये मुख्य रूप से कफ प्रकृति की वजह से होता है। कफ मतलब जो लोग ज़्यादा फैटी प्रिपरेशंस फूड में यूज़ करते हैं या सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, तो उनके शरीर के अंदर भारीपन आने लग जाता है। ये भारीपन ही हार्ट के स्ट्रेस को बढ़ाता है। आप जानते हैं कि आज के वक़्त में हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, सिर्फ़ बुजुर्गों के लिए नहीं, ये तो यंगस्टर्स में भी आजकल होने लगा है। परंतु ये हार्ट की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का मुख्य कारण है कफ, हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, हमारी फूड हैबिट्स। इसीलिए कफ के विपरीत, कफ के उल्टे अपने को इसमें हमें खान-पान या मेडिसिन्स का ध्यान रखना है, जैसे कि कड़वी चीज़ें, तीखी चीज़ें, रूखी चीज़ें जैसे जौ का आटा। सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, जौ का आटा बहुत रूखा होता है। तो ऐसी चीज़ों का इसमें सेवन हमें कराना चाहिए जिससे कि शरीर के अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल जम रहा है या कोई भी बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं, एलडीएल, वीएलडीएल, वो इसमें से कम होने लग जाए। गुगलू, सर्पगंधा, जटामांसी, ये औषधियाँ बहुत अच्छी काम करती हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स का में कुल मिलाकर के कफ के विपरीत चिकित्सा करने की ज़रूरत है, कफ के ठीक उल्टा करने की ज़रूरत है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट बीमारी जो नॉर्मली होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की होती है। नॉर्मली जो व्यक्ति बुजुर्ग होने लग जाते हैं, उनके अंदर लंग्स की जो फैलने की क्षमता है, उसकी इलास्टिसिटी है, वो कम हो जाती है। ऐसे में फेफड़े पूरी तरह से संकुचित नहीं हो पाते, नहीं फैल पाते हैं। तो एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये लक्षण काफ़ी ज़्यादा मिलने लग जाते हैं बुजुर्गों में। थोड़ा भी चलते तो साँस चलने लग जाती है, फूल जाती है। ऐसी बीमारियाँ जो होती हैं वो कफ, वात, इन 2 दोषों से मिल कर के होती है, कफ और वात दोनों से। तो ऐसी बीमारियों में भी हमें सबसे पहले छाती के ऊपर तेल लगाना, वहाँ भाप लगाना, बस्ती चिकित्सा पंचकर्म में मैंने बताया था, बस्ती, एनिमा, ये देना और रसायन औषधियों का सेवन कराना जैसे कि आंवला, हरित की, ऐसी औषधियों को खिलाना, ऐसी दवाइयों को देना। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत हद तक इम्प्रूव करते हैं। कहने का मेरा शॉर्ट में इस बात का ये था, बीमारियाँ तो बहुत होती जरावस्था में,
परंतु जरावस्था में जो भी बीमारियां होंगी उनके पीछे आयुर्वेद में कोई ना कोई एक दोष माना जाता है। उस दोष को पहचान करके उस दोष के विपरीत, उस दोष के गुणों के विपरीत उल्टा, ठीक उल्टा जो चिकित्सा कर्म किया जाता है वो हमें करना है। नॉर्मल वे में जैसे हम लोग आप लोग देखते ही हैं कि आज के वक्त में हम लोग की लाइफ सबकी स्ट्रेस वाली है, समय का सबको ध्यान रखना पड़ता है, कहीं लेट ना हो जाए, भागा दौड़ वाली जिंदगी है। ये जितना भी मेंटल स्ट्रेस है, ये सब भी जरावस्था को बढ़ाने में बहुत योगदान करता है। तो जरावस्था तक व्यक्ति पहुंचे उससे पहले मेंटल स्ट्रेस की वजह से व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है। हम ज्यादातर लोगों के हम देखते हैं माथे पे लकीरें रहती हैं। उसके पीछे कारण है कि हम ज्यादा दिन भर सोचते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ चीजों की टेंशन में लगे रहते हैं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा था कि दिनचर्या डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए और सद्वृत्त का पालन करना चाहिए। अगर व्यक्ति इस चीज का पालन करता है तो बहुत हद तक जरावस्था या उससे उत्पन्न होने वाले रोगों से बचा रह सकता है। लास्ट में मैं कुछ शॉर्ट टिप्स आप लोगों को दे देता हूँ। कोई नोट करना चाहे तो कर भी सकते हैं, सो दैट ये आप अपनी लाइफ में इसको आप इनकलकेट करें इन हैबिट्स को, जिसकी वजह से लंबे आप यूथफुलनेस को एंजॉय कर पाएंगे। और अगर जरावस्था कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वो भी अगर इनका पालन करता है तो वो भी लंबे समय तक स्वस्थ रह पाएगा। सुबह उठने के बाद मैंने बताया गुनगुना पानी पीना है आपको, ये पहला चीज। दूध में 1 चम्मच देसी घी, कोशिश करें प्योर घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 1 चम्मच देसी घी, बहुत कम शुगर के साथ या बिना शुगर के, अगर ले सकते हैं सुबह-सुबह ब्रश करने के बाद तो बहुत अच्छा है। भोजन में चीनी, आर्टिफिशियल्स सॉरी, जितने भी शुगर हैं एडेड शुगर, उनको कम कर दें आप। नमक को कम कर दें आप। स्मोकिंग और किसी प्रकार का कोई नशा है उसको खत्म कर दें, ना लें। एक्टिव लाइफस्टाइल रखें अपनी। एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप एक्सरसाइज करें या जिम में जाएँ। अगर आप 2 किलोमीटर वॉक भी कर लें तो वो भी एक्टिव माना जाएगा। खासकर भोजन करने के बाद, वो भी डिनर। डिनर के बाद ज़रूर एक्टिव लाइफ रखें आप, कम से कम आधा पौन किलोमीटर चलें। मेंटल गेम्स खेलें, अपने दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए मेंटल गेम्स आप लोग करें। चेस, पज़ल्स, ये सारे गेम्स बहुत अच्छे दिमाग को मेमोरी को पावर को बढ़ाते हैं, वो हमेशा रखें। जब भी समय मिले, फ्री टाइम मिले, जब भी मिले ध्यान लगाएँ, शांति से आँख बंद करके चुपचाप लंबी गहरी साँस लें और सिर्फ साँसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें अपना, उसे ध्यान कहते हैं। सद्वृत्त का पालन करें, सद्वृत्त मैंने आपको विस्तार से बता ही दिया है, सद्वृत्त का ज़रूर पालन करें और संतुलित और ताज़ा भोजन करें। अगर इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, तो आप जरावस्था उत्पन्न होने से पहले के लक्षण और जरावस्था उत्पन्न होने के बाद के लक्षणों को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। जरावस्था इनेविटेबल है, आनी है, बुढ़ापा आना है, परंतु 65-70 साल से पहले जो बुढ़ापा आ जाए, वो उसकी चिकित्सा करनी सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसकी चिकित्सा करने के लिए शरीर की चिकित्सा करनी ज़रूरी है और मन की चिकित्सा करने की ज़रूरत है। शरीर की चिकित्सा के लिए आपको आहार, निद्रा, व्यायाम इन सब चीज़ों का पालन करना है और मन की चिकित्सा करने के लिए आपको ध्यान, सद्वृत्त का पालन करना है। तो इन सब चीज़ों का पालन करते हुए अगर व्यक्ति रहे तो आयुर्वेद के अनुसार वो शतायु हो सकता है, मतलब 100 साल वो जीवित रह सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। लगभग 1 घंटा होने वाला है और वंस अगेन मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। प्रवीण, ओवर टू यू। जी धन्यवाद सर। बहुत ही बृहद और व्यवहारिक जानकारी जो कि आजकल के समय में बहुत कम ही सोर्सेस से हमें उपलब्ध हो पाती है। जरावस्था या फिर हमारे आहार विहार को लेकर जो सर ने ज्ञान दिया है वो हम कह सकते हैं कि वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा है कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल के। तो अगर हम इन सारे प्रैक्टिसेस को अगर हम अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकें या फिर इनको अपने लाइफ में उतार सकें तो ये कहीं ना कहीं देर या सवेर हमको आने वाले जो मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं, डिजीजेस हैं, उनसे आपको ये बचा सकता है। तो इसी कंटिन्यूएशन में अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं माइक अनम्यूट करवा दूंगा आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मोहित जी। सर
मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कभी-कभी रात में दूध पी लेते हैं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है बहुत ज़्यादा, सो नहीं पाते। ये भी क्यों होता है सर ये? देखिए, ये आपका जो सवाल है, वो थोड़ा-सा आपने उसको उससे शायद जरावस्था के हिसाब से मैंने दूध और उसके हिसाब से बोला। देखिए, रात में सोते वक़्त भोजन भारी नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट या जिसमें भी प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, वो हमारे पचने में थोड़ा समय ज़्यादा लेता है। तो ऐसे में रात में सोने से पहले कई जगह प्रचलित है कि गर्म दूध पीना चाहिए। मैं इसको काफ़ी हद तक सही नहीं मानता। दूध क भोजन करने के बाद तो कुछ खाना ही नहीं चाहिए, कुछ पीना नहीं चाहिए। रात का खाना खा लिया अगर किसी व्यक्ति ने, तो उसके बाद उसको कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए। अगर वो उसके बाद कुछ खाएगा-पिएगा, तो जो आप गैस्ट्रिक ट्रबल बोल रहे हैं, भारीपन बोल रहे हैं, वो लक्षण उसमें उत्पन्न होंगे। दूध को पीने का बेस्ट टाइम है या तो सुबह या फिर शाम को, लेकिन नाइट में नहीं है और खाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश आप ये करें कि आप जब भी भोजन कर लें, डिनर कर लें और डिनर करने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखें मिनिमम, और उस दौरान कुछ भी खाएँ-पिएँ नहीं, तो आपको ये गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होगा। थैंक यू सर। I think there is no more questions from the audience side. Jitesh Sharma. Okay, Jitesh, just on your mic and ask a question. Jitesh. वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जितेश जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब हमारे मतलब सीनियर सिटीजन देखते हैं कि नसों में बहुत दर्द होता है, मतलब पूरे लेग्स में एक्सटेंड होता है वो दर्द, मतलब नस में दिक्कत होती है, ब्लॉकेज। तो उनके मतलब डाइट में क्या होना चाहिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? देखिए, मैंने आपको बताया था मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है बुजुर्ग व्यक्तियों में, और ये मैंने आपको बताया कि वात प्रकृति के कारण होता है। मतलब शरीर में जब भी रुक्षता बढ़ने लग जाती है, रूखापन आ जाता है, तो आप नोटिस करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों में जॉइंट्स के अंदर पेन होता है, वो पैर या हाथ सीधा नहीं कर पाते और हाथों या पैरों में कंपन भी होता है। तो ये सारे जो हैं, ये सारे जो लक्षण हैं, वात प्रकृति के लक्षण हैं। तो ऐसे में उनका ट्रीटमेंट प्लान मैंने आपको बताया था, तेल मालिश करना, शरीर पे भाप लगाना, और इसके अलावा पंचकर्म की कुछ थेरेपीज़ हैं जैसे बस्ती, वो प्रयोग करना पड़ेगा। अगर व्यक्ति, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी अच्छे चिकित्सक को आप पास में आयुर्वेद के दिखाएँ और पंचकर्म थेरेपी लें इसमें। उससे उनकी नसों में जो भी तकलीफ है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। एंड सर तेल कौन सा यूज़ करना चाहिए? मतलब तेल की भी अलग-अलग टाइप्स होती हैं ना? हाँ, नहीं, तेल तेल के आप अलग-अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम ट्रीटमेंट के लिए तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर कंसल्टेशन का तरीका नहीं होता है। पर तेल बहुत सारे आते हैं, मार्केट के अंदर तेल आते हैं, इसलिए मैंने कहा किसी अच्छे चिकित्सक को एक बार आप दिखा दें। पंचकर्म थेरेपी के साथ-साथ तेल मालिश करना पड़ेगा, केवल तेल मालिश से ठीक नहीं होने वाला। ये कहना चाह रहा हूँ बस। Thank you so much, sir. And in near future also we will take your guidance and your opinions, and hopefully in the near future also when we will organize such type of webinar or seminar in a physical mode, definitely I wish to listen you once again, sir. Thank you so much for sparing your time. Thank you, Before Professor. say thanks, sir, I would like to request our additional head, Dr. N.G. Raghavendra Rao, sir, to give a token of appreciation in the form of a certificate. Sir, please. Sir, thank you very much, sir, for your Thank- excellent this one, sir. Thank you very much, sir. Thank you.